Sir, how about you explain this tomorrow? I'll just take the picture and everything and I'll send it in the WhatsApp group. Sure. No worries. Tomorrow tomorrow, can you explain it? Not today. Yeah, no worries. ठीक है गाइस, फिर देन वेट फॉर 2-3 मिनट्स। ओके, सभी लोगों को आ जाने दो। मैं भी 2 मिनट्स, मतलब क्लास ज्वाइन करके रखो। 2 मिनट बाद आप अगर कुछ कर रहे हो तो 2 मिनट बाद आके ज्वाइन कर सकते हो। गिव मी 2 to 3 मिनट्स। ओके, हेलो, यस, एम आई ऑडिबल गाइस? यस। हाँ जी, एक बात मेरे को बताइए, आपने 9.2 एक्सरसाइज करी सॉल्व? अगर कोई भी डाउट है तो पहले तो मुझसे वो पूछ लीजिए आप। और डाउट होंगे यार, अगर आपने की होगी सॉल्व तो मतलब होना चाहिए डाउट। अगर आपने की है सॉल्व तो सारी तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो डाउट आएगा ही। जी सर। हाँ, वो अलग बात है आपने ना की है तो। अरे मोहम्मद माज, हेलो। जी हेलो सर। माज, you not regular in my class? Sir, I took maths. No, you are regular in my class or not?
I think you have only attended 2 or 3 classes, right? No, just one class last week. Just one class. Okay. Okay. So did you solve this exercise 9.2? Yeah, in school we finished. Acha. Do you have any doubt? Actually, the whole exercise is omit except for 14, 15, and 16 question for us. अरे Yeah, ऐसा क्यों? I don't know. 14, 15, 16 पर तीनों अच्छे क्वेश्चन है. 15 और 14 तो फिर भी ठीक है, हो जाएंगे. 16 is a very good question. Yes. Yes, Have you solved that, Maz? yes, in school we did. अच्छा. You understood? Yeah, I understood. ठीक है. And what about Aisha? आयशा किए क्वेश्चन सॉल्व? No, मजा आ sir. रहा है भाई, पार्टी चल रही है. क्यों? अरे तुम्हारा तो फीफा चल रहा है. आयशा है तो मैथ्स पढ़ ले. हाँ? नहीं तो फिर तेरे को वो मैच देखने जा रहे हो तुम लोग? फीफा, आयशा, आयरम, कोई भी पूछा तो था मैंने तुमसे, कहते कि नहीं जा रहे हो तुम लोग तो. इज देयर एनीवन हु इज फ्रॉम कतर अपार्ट फ्रॉम दीस टू? Sir, I have a doubt in that fifth question. अच्छा, डाउट. हाँ, गुड. फिफ्थ, which question? Sir, Sorry, the fifth one, that in an AP. we have to each solve term this fifth method. one question in the class. Oh, yes. But I didn't Ah. understand that properly, sir. Can you just ठीक है. re-explain? Yeah, please. Yeah. आयशा है तो तू पढ़ ले, या नहीं तो मैं तेरे से ना मैच की क्लिप्स मंगवाया करूंगा, देख ले. फिर परेशान करूंगा मैं बहुत. अब तुझे पढ़ना नहीं है तो फिर अपना घूम, फिर हमें बेच, मैच दिखा हमें. फिफ्थ में यार हमें क्या दिया हुआ है? pth टर्म दी हुई है 1/q, और qth टर्म दी हुई है बच्चे 1/p. Am I correct? Yes. Prove that the sum of first pq terms is this half of pq plus 1. ठीक है यार. तो हमने तो प्रॉपर्टी भी बनाई थी यार काफी तुमसे. ये तो मैंने तुम्हें अलग तरीके से भी समझाया था बस. ठीक है, चलो. तो तारीफ, अभी हमें तो नहीं पता कौन सा एपी है ये. इस एपी का ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, राइट? Sir, We just know that there is an AP whose pth term is 1/q and whose qth term is 1/p. So what I will do is, and he needs me to prove, he or she needs me to prove this sum of pq terms is this, right? So मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है. I don't have any information. I don't have any information. I just know that there are two terms, right? And I have to prove this. So कोई भी AP, कोई कुछ भी, you want to find out anything or you want to do any operation in an AP, तो आपको सबसे पहले A और D पे फोकस करना है. As soon as you get A and D, everything is doable, right? You can apply any formula, you can solve anything, you can do anything. But you first have to do what? You have to find A and D, right? So to identify this AP better, or to operate this AP better, you need to find A and D. Now, how will you find A and D? These two things are given just to find A and D, right? So let's say this AP is something like that. First term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D, and it goes on. हाँ जी. तो
let's say this AP is something like that, a plus d, a plus 2d, and it goes on. So we have to find a and d to find sum of PQ terms, right? Now, to find out a and d, we have these two equations. We know the pth term is 1 by q. So what we can say is that its pth term will be a plus p minus 1 into d is equals to given 1 by q. And its qth term is given as 1 by p. ये बात क्लियर है क्या? पहले ये बता। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये क्लियर है तो फिर सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब तो यार ये हमारे पास एक बेसिक वो है, और वो 10th क्लास में नहीं होता था, वो क्या होता था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वेरिएबल है अभी हमारे लिए ए और डी। यहाँ से हम ए और डी फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन है, डी फाइंड आउट करेगा तो तेरे पास कुछ आ रहा होगा 1 बाई पी क्यू। डी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे बस। फिर ऐसे ही ए फाइंड आउट कर, डी की वैल्यू पुट करके, वो भी आएगा ए 1 बाई पी क्यू। तेरे को ये चाहिए, लिख दे। कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा, पी क्यू बाई 2 भाई एस एन होता है एन बाई 2। अभी तो निकालना चाहता है पी क्यू टर्म्स का सम। सो दिस शुड बी नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a plus n minus 1, n is what? PQ in this case, into D, which is again PQ. पूरे से PQ कॉमन निकाल दे, डिनोमिनेटर से PQ आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 अपॉन PQ है, यहाँ पे भी 1 अपॉन PQ है। बाहर आएगा तो PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा। दिस इज 1 बाई 2, 2 प्लस PQ माइनस 1। This should be 1 by 2 PQ plus 1. Tarif, did you get it? Yes, sir. Understood. तो कभी भी तेरे को एपी में कुछ भी करने का है ना, यू ट्राई टू फाइंड आउट ए एंड डी फर्स्ट। इफ यू हैव ए एंड डी, यू नो एपी। नाउ यू आर द किंग। अभी तेरे को जो मन वो कर। हाँ जी, एनी मोर डाउट्स, एनीथिंग एल्स? तुम सॉल्व तो नहीं कर रहे हो, है ना? और मेरे पास तरीके हैं ये सब करने के, वैसा नहीं है मैं अभी से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आई हैव बीन टीचिंग लाइक फॉर सो लॉन्ग। I have 4 younger sisters. I mean, 1 younger brother and 3 younger sisters, and I have been teaching them like for ages, है ना? So I know all the ways how to get something out of you. I also know how will you study. I just don't want to use those methods. I want you to be happy in my class, and I want you to be focused. I don't want you to be tensed. Okay? So why to do this, है ना? अपना पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। मैं तो बहुत ज्यादा लोड भी नहीं डालता, कभी ऐसे ही ट्रीट करता हूँ मैं तुम लोगों को जैसे तुम मेरे छोटे भाई बहन हो। आई नेवर ट्रीटेड यू लाइक नाइदर रूड नॉर स्ट्रिक्ट, है ना? मैं तो प्यार से ही पढ़ाता हूँ, तो तुम भी प्यार से पढ़ लिया करो। क्यों अब्दुल्ला? अब्दुल्ला तेरे को तो वीडियो ही ऑन रखना है यार मेरी क्लास में। तू मेरे से बात ही नहीं करता है? क्यों नहीं करता बात? बता क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चल, आज मुझसे बात तो कर तू थोड़ी। तेरा पढ़ाई में मन लगता है? सच सच बता। आंसर नहीं करेगा? मेरे को दिख रहा है तू। तो मन लग, अरे सच सच बता। कोई ऐसा, मेरी क्लास में बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं है, तू नो फिल्टर टॉक कर सकता है इधर। तो तेरा पढ़ाई में मन लगता है? पहले मेरे को ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर। नहीं, मैं अब्दुल्ला से ही पूछ रहा हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला। हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल। नो
आई एम अज्यूमिंग द आंसर इज नो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कितना मन लगता है कितना नहीं। मैं मतलब तू ये बात मेरे से फ्रैंकली बता सकता है कि हाँ जी, नहीं नहीं जचता उतना, नहीं उतना पसंद आता पढ़ाई, मतलब यार नहीं, थोड़ा वीक हूँ मैं मैथ्स में ना? हाँ सफा, आई नो सफा, तू टेंशन ही मत ले, मेरे को पता तो सब है कि किसने की एक्सरसाइज किसने नहीं की है। बस ये है कि मैं अभी तुम पे लोड नहीं डालना चाहता, और अभी बट शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी तुम्हारे एग्जाम्स अप्रोच करते रहेंगे। अब 2 3 4 महीने में सब कुछ होने लगेगा। अभी मेरे चैप्टर्स भी काफी हो चुके हैं, हम 8 9 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, 4 5 6 और पढ़ने हैं। अभी 1 2 चैप्टर ऐसे आएंगे जो पूरा फॉर्मूला बेस्ड होंगे। उससे पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें पिछले फॉर्मूले देखूंगा तुम्हारे, तो अभी मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करने वाला हूँ, है ना? अभी थोड़ा परेशानी वाला टाइम आ गया। अभी तक तो थोड़ा मजे में पढ़ रहे थे हम, बट ऐसे में क्लास बंद भी कर देता हूँ। एक और बात, ये क्लास थोड़ी अलग चलेगी तुम्हारी, ऐसे नहीं चलेगी जैसे तुम एज्यूम, जैसे तुम सोचते हो शायद। ऐसे नहीं चलेगी, ये मेरे हिसाब से चलेगी। और मेरा हिसाब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं तो प्यार से ही पढ़ाना चाहता हूँ हमेशा, खुशी से, बिकॉज आई लव द सब्जेक्ट, सो आई वांट यू गाइस टू टेक इंटरेस्ट इन इट। नॉट टेक इंटरेस्ट एज, मतलब बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम लोग इतना जरूर पढ़ लो कि यार थोड़े मार्क्स आ जाए, घर वाले भी खुश रहे, है ना? और थोड़े मार्क्स जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर, ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें कुछ सिखाता नहीं है, मैथ्स तो काफी कुछ सिखाता है इनफैक्ट, आई वुड से। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तुम सब लोगों ने मैथ्स ले भी लिया है गलती से, तो अब ले लिया है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सारे 80 आउट ऑफ 80 ले आओ, वो भी पॉसिबल नहीं है, सबके नहीं आएंगे। मैं मेहनत करके भी नहीं आएंगे भाई, तुम लाके दिखा दो। ऐसा भी नहीं है कि तुमने पढ़ा, कि कोई तुमसे कहे कि अरे तू पढ़ा नहीं, पढ़ ले और फिर ले आ 80 में से 80, नहीं आएंगे। तो इतना आसान नहीं है, मैं और ना मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता कि तुम लोग सारे 80 आउट ऑफ 80 लेके आओ। हाँ, मैं इतना जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार 40 आ जाए सबके, मिनिमम, बेयर मिनिमम है 40। 50% तो स्कोर करो, वैसे तो 50 प्लस होना चाहिए। घर वाले बहुत कुछ बोलते होंगे, आई आई अंडरस्टैंड दैट, कि घर वाले बोलते होंगे नहीं हमें तो 70 प्लस चाहिए, मतलब बहुत लोगों का प्रेशर हो शायद, पेरेंट्स का, हमारे इंडियन पेरेंट्स का प्रेशर होता ही है पढ़ाई में। बट मेरा ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कभी भी, इसीलिए मैं बोलता भी हूँ यार कि बस आधा घंटा या 45 मिनट्स आप डेली दो मेरे को, तो काफी होगा हमारे लिए, है ना? बट अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यार फिर हमें भी अपने तरीके थोड़े इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, सो दैट यू स्टडी, सो दैट यू लर्न दीज थिंग्स। और पढ़ाई का वैसे एक्चुअल जो पर्पस था वो तो यही था ना कि आपके माइंड की ग्रोथ हो। हम ये नहीं चाहते कि आप ये फॉर्मूले उठा के हर जगह लगा दो, आप लगा भी नहीं पाओगे शायद, आप बहुत सारे मैथ्स का तो इसमें से यूज भी नहीं करोगे लाइफ में, है ना? बट हाँ, ये बिल्कुल सर्टेन है कि जितना आप मैथ्स पढ़ोगे उससे माइंड जरूर ग्रो कर रहा होगा, उससे डिफरेंट टेक्निक्स, जितने भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है, कंप्यूटिंग टेक्निक्स होती है, वो जरूर आपकी ग्रो करेंगी। और रीजनिंग अच्छी होगी, लॉजिक्स अच्छे होंगे, तो यू विल बी एबल टू रीजन आउट बेटर, राइट? दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस टू स्टडी द सब्जेक्ट, ठीक है? But having said that, it's not like you have to study for 3 hours continuously for maths. If you like it, तो yes, sure, you should study as much as you can. But if you don't like it, तो just do the bare minimum ना. Bare minimum is कि आप NCERT खत्म करते चलो मेरे साथ. I always give you this time कि आप मेरे से कभी भी क्लास में आके डाउट्स पूछ सकते हो. और आई ऑब्जर्व दिस कि किसी ने भी आज तक मुझसे NCERT के अलावा कोई बाहर से डाउट नहीं पूछा है, कोई एक भी बच्चे ने, राइट? दैट इज नॉट अ गुड थिंग एज अ क्लास, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। मैं नहीं कह रहा कि सब लोगों को यहाँ पे कुछ मैथ्स में फोड़ना है, बट क्लास में 1 2 बच्चा जरूर होता है जिसको कुछ फोड़ना है मैथ्स में, और सबको एजुकेशन में ही नहीं फोड़ना है, देयर आर सो मेनी वेज टू स्टैंड आउट। एंड फर्स्ट दैट शुड स्टार्ट विद योर इंटरेस्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, या फॉर से एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो पढ़ो ना फिर उसको। बट अगर आप इंटरेस्टेड म्यूजिक में हो तो फिर उसको पढ़ो, फिर उसमें अच्छा करो।
मतलब जो भी जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उस पर जरूर काम करो। मैं पहला तो सजेशन ये है सभी लोगों के लिए, बीट मैथ्स, बीट बीट स्टडी, बीट स्पोर्ट्स, बीट एनी आर्ट, बीट एनीथिंग, राइट। आपको नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, रीडिंग में इंटरेस्ट है, राइटिंग में इंटरेस्ट है, वो करो, बट करो ना कुछ। मेरा बस पॉइंट यही है कि ऐसे ऐसे टाइम नहीं खोटा करना। बहुत लोगों को ये वर्ड समझ नहीं आएंगे अभी जो मैं बोलने वाला हूँ। तो टाइम खोटा करना है लाइक टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे ना, टाइम नहीं खराब करना। मतलब टाइम खराब भी कर सकते हैं बट सारा टाइम नहीं खराब करना। खुद के स्किल्स पे भी तो काम करना है ना कुछ, राइट। तो यू हैव टू ग्रो। तो उसके लिए यार आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या आप ये कर लो, या आप स्पोर्ट्स कर लो, या आप म्यूजिक कर लो, या आप और कोई आर्ट कर लो, पेंटिंग कर लो, जो भी आपको इंटरेस्ट हो। वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, राइट। और दूसरा एक एक अभी हमारा इंटरेस्ट तो यार, मेरा तो अभी राइट नाउ इतना सा है कि बस मैं चाहता हूँ आप लोगों ने जितने सब्जेक्ट्स, काफी चैप्टर्स आप ऑलरेडी खत्म कर चुके हो, तो आई वांट यू गाइस टू बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चंस फ्रॉम देम। नॉट सेइंग कि सारे, बट हाँ इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए यार। तो उसके लिए हम अभी टेस्ट वगैरह आपके कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, एक तो। और दूसरा कि हम चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो अगर आप मतलब आप प्यार से नहीं समझ पा रहे, नहीं है भाई, अब दिमाग क्या करे। ठीक है, आप लोगों का मैं दिमाग समझा, मैंने माना, तो भाई फिर हम बढ़ा देते हैं अपना। अब यही करना पड़ेगा क्योंकि तुम तो सुन नहीं पा रहे हो, तो समझ नहीं पा रहे हो। आयशा अभी तक 10th में है, रोज 10th के साथ आती। आयशा ये कौन 10th में, मतलब कहाँ करती है तू 10th वाली क्लास, जो दोबारा नाम चेंज करने की जरूरत पड़ती है तेरे को, 10th पी? सर ये लास्ट ईयर स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस थी तो उसके लिए ये जूम पे क्या मैंने बात है, 10th लड़की ने लास्ट ईयर से नाम ही चेंज नहीं करा है, देखो। आयशा 10th पी, 10th पी चल रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ग्रो करने की, खुद पे काम करो, वो कह रही खुद पे हमने जूम का नाम चेंज तक नहीं करा आज तक। आप कह रहे हो खुद पे काम करना है, ये सब नहीं है बोला करो हमसे। सही है ब्रो। तो मतलब थोड़ा हाँ, मैं ये कह रहा था कि उसके लिए फिर यार हमारे पास तरीके हैं, बट आप परेशान रहोगे ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपको परेशान करना। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि आपको मॉनिटर करेंगे, हम हर क्लास में आपकी कॉपी चेक करेंगे। कैसे करना है वो हम पे छोड़ दो। हम हर बार आपके क्वेश्चंस चेक करेंगे कि भाई पूरे करें कि नहीं करें, असाइनमेंट की कॉपी बनवा देंगे। बहुत तरीके हैं यार, बट ऐसे पढ़ाना नहीं है ब्रो। किसी भी को भी ऐसे नहीं पढ़ाना कि स्ट्रिक्टली नहीं, कोई ऐसा वो है। प्यार से पढ़ो ना, मजे से पढ़ो। मजे से पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे। ऐसे मैं मार वार के पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो रोज तो बदतमीजी करके पढ़ाऊंगा, तो तुम में भी इंटरेस्ट चला जाएगा, तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा तुम्हारा। दैट आई सर्टेनली डोंट वांट। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपना, बढ़िया सब्जेक्ट है, तो क्यों ना हम पढ़ ले। थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, है ना। हर बार मैं आता हूँ क्लास में, मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि भाई पहले पहला टाइम डाउट्स के लिए है। और भाई कभी लेके तो आओ डाउट्स, मतलब ऐसे ढेर सारे डाउट्स लेके आओ। क्लास नहीं होगी भाई, पूरी क्लास में डाउट्स ही होंगे, और मैं करूंगा सब क्वेश्चन सॉल्व। और आप लोग भी इस पर्पज से मत आओ कि चलो मेरा डाउट नहीं है। लेट्स से अभी आज शायद तुम थोड़े बहुत मोटिवेट हो जाओ और तुम नेक्स्ट क्लास में डाउट लेके आते हो। लेट्स से सफा डाउट लेके आई और सफा ने 10 डाउट्स दिए मुझे, तो तुम्हारा तो कोई डाउट है नहीं उसमें, तुमने कहा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुमने वो 10 क्वेश्चन लगाए ना हो, तुमने वो 10 क्वेश्चन सॉल्व ही ना करें, है ना। तो अगर तुमने वो 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, तो तुम सुनो उस क्वेश्चन को, समझो, एंड तब क्लास में समझ लो उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि वो कुछ अच्छे क्वेश्चन ही होंगे जो डाउट्स में आए हैं। मतलब सारे भी नहीं तो कुछ तो अच्छे क्वेश्चन होंगे ही होंगे उसमें। तो जब भी डाउट्स क्लासेस होंगी तो मैं आपको पूरे डाउट्स क्लियर करूंगा आपकी क्लास में, और मैं चाहता हूं कि आप लेके आओ डाउट्स। क्योंकि जब तक आपके डाउट्स नहीं होंगे आप कुछ सीख नहीं रहे हो, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता सकता हूँ। और जब आप सीखना स्टार्ट करोगे तो डाउट्स आएंगे ही आएंगे। मतलब ऐसा थोड़ा ना यार कि तुम ही मैथ्स पढ़ रहे हो, हम भी तो पढ़ के आए हैं ना मैथ्स यही, और अभी भी पढ़ रहे हैं मैथ्स ही। तो हमें तो पता ही है मैथ्स कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कैसे मतलब ग्रो करोगे तुम इस सब्जेक्ट में। उसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत लगान करनी पड़ेगी। और एनसीईआरटी तो यार काफी छोटी चीज होती है, मतलब मैं ऐसे कुछ बड़ा नहीं मांग रहा आपसे। एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो मतलब ऐसे ही हो जाती है। ऐसे पेन नहीं उठाने की जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी के लिए। मैं ये लेवल अचीव करने के लिए नहीं कह रहा आपसे। मैं तो बस इतना चाहता हूँ आप कर लो उसको पूरा सॉल्व। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इजी है, टफ काम नहीं दे रहे हम आपको।
टफ होता अगर मैं आपसे कहता आर डी शर्मा सॉल्व करो, या मैं आपको असाइनमेंट बना के देता हूँ वो सॉल्व करो। और मैं अगर असाइनमेंट बनाता भी हूँ तो मैं भी जनरली आपके लिए इन्हीं सब से असाइनमेंट्स बनाता हूँ जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स के, या फिर एनसीईआरटी होती है उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन मिसलेनियस के। हम टफ असाइनमेंट आपको दिखाएंगे, टफ पढ़ाई भी दिखाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत बड़ा चैप्टर है अगर टफ पढ़ाई पे आए तो, आईआईटी की तैयारी करने पे आए तो। बट वो तो अपन को करनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और उसमें हमारा गोल कुछ अलग है। हमें सीबीएसई में बेटर स्कोर करना है, और सीबीएसई में बेटर स्कोर करने के लिए आपको 11th के सिलेबस पे कमांड चाहिए। क्योंकि अभी सिलेबस ऐसा नहीं चलेगा कि यार कि सिर्फ 12th वाला पढ़ के आप 12th में पास हो जाओगे, क्योंकि 12th में जितनी चीजें होंगी वो काफी चीजें इंटरकनेक्टेड 11th से भी होंगी। लाइक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिगो नहीं आता तो आप 12th की चीजें उठा ही नहीं पाओगे भाई, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप 12th की बहुत सारी चीजें। और मैं हर साल बोलता हूँ ये बात, आप अपने बड़े भाई बहनों से कोई भी 12th में पढ़ चुका हो, 11th 12th क्रॉस कर चुका हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगर कोई भी मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट रहा होगा तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि अगर आपको ट्रिगो नहीं आता तो आप 12th में कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत परेशान होने वाले हो। और मैं भी करूंगा परेशान उल्टा साथ साथ। फिर मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें 11th कि मैंने तुमसे कहा था 11th में पढ़ लो, तुम पढ़े नहीं। तो 11th की चीजें मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो 12th में पास हो जाओगे। ये एक प्रोसेस है पूरा यार, लैडर से। तो 11th पहली लैडर है, 12th बाद वाली लैडर है, तो पहले पहले वाला क्रॉस करना पड़ेगा तब अगले वाले पे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ना ही तो यहाँ पे आपका वो आईक्यू डेवलप होगा जो हम करना चाहते हैं, और ना ही आपके पास फॉर्मूले होंगे, ना ही यू विल हैव थिंग्स टू वर्क आउट, तो प्रॉब्लम होगी 12th में भी। इसलिए करना है ये सब चीजें। सीक्वेंस एंड सीरीज भी वैसे ही चैप्टर है, आप एपीजीपी का यूज अगले साल देखेंगे फिर से आएगा, तो डोंट लीव इट, ओके। सॉल्व करके आया करो क्वेश्चन। और प्रॉब्लम ये है यार कि यार तुम नहीं करोगे, मैं अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा, फिर तुम उसका भी नहीं करोगे, ऐसे ही छूटता चला जाएगा, पाइलअप हो जाएगा सारा। तो भाई लोग ऐसा मत करो, है ना। यू हैव दिस लास्ट वार्निंग, अभी नेक्स्ट क्लास से लगाना शुरू करो। आप पुराना नहीं लगा सकते तो आज की क्लास का जो होगा आज लगा के आना, दैट्स ऑल आई वांट। तो इतना इतना करते रहो बस, ठीक है। प्रॉब्लम्स पूछो आके। अब्दुल्ला कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे से एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो, मेरी बात समझ ले, और सही से समझ ले इस बात को, मैं जो बता रहा हूँ तेरे को दिमाग से समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं होता है क्लास का। मैंने बोला ना कि मैं पूरा आपके 50 डाउट है भाई, मैं 50 के 50 डाउट लेके क्लास खत्म करूंगा। कोई ये भी मतलब नहीं है कि आपकी क्लास 9:30 तक है। टाइम वाइम से तो मेरी क्लास देखना ही मत तुम कभी भी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 to 9:30 क्लास है तो वो 9:30 की 11 भी जा सकती है, और गई है। मतलब पहले पिछले बैचेस में, लास्ट ईयर के बैचेस जो थे मेरे, वो ऐसा भी हुआ है कि 1.5 घंटे की क्लास 2.5 घंटे 3 घंटे खत्म हुई है। आईआईटी के बैचेस थे वो, तो उसमें काफी पढ़ाना पड़ता है, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं, तो ऐसा नहीं है कभी भी टाइम से नहीं चलती क्लासेस। हाँ आपको बहुत इशू होगा कि अरे 9:30 की क्लास मतलब, अरे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं बोल रहा था, ये 8 to 9:30 मेरे यहाँ पे टाइम होता है तुम्हारा जो भी क्लास चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही लिमिटेड टाइम है आपके पास, मैं टाइम हमेशा बढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जितनी प्रॉब्लम्स है आप बोलो। और जब तक ट्राई नहीं करेंगे, जब तक फाइट नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं यार। मैथ्स मैथ्स से ये इंपॉर्टेंट चीज भी सिखाता है कि हाउ टू फाइट। आप एक क्वेश्चन पे बहुत देर अटके रह सकते हो, यू हैव टू फाइट इट, एंड टू फाइट दैट यू हैव टू थिंक इन थिंक विद डिफरेंट वेज। तो आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाके आप शायद क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। अलग तरीके से अपना अप्रोच बदलो बार बार, तो देखो क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो फाइट करना पड़ेगा, तो फाइटर तो बनो कम से कम। कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो जितनी प्रॉब्लम से लेके आओ, बोलो, मुझे बताओ। नहीं बता सकते हो चैट पर लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा आप सबके सामने बोलो, आप चैट पर लिख दो मेरे को, कोई बिल्कुल इशू नहीं है। मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो कभी भी आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फील होता है तो, और अनकंफर्टेबल फील करने वाली कोई बात नहीं है क्लास में, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप लोगों को मैं ऐसे ट्रीट ही नहीं करता कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली या रूडली। और कोई बुली भी नहीं करेगा क्लास में, मैं ही हूँ सबसे बड़ा बुली। अगर कोई बुली करने पे आता है तो मैं ही बुली कर सकता हूँ बस तुम लोगों को, और कोई आपस में नहीं कर पाएगा। और मैं करना नहीं चाहता, मैं प्यार से पढ़ाना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग वाज दिस ओनली कि मैं बिल्कुल बुली नहीं करना चाहता तुम लोगों को, मैं प्यार से पढ़ाना चाहता हूँ। तो पढ़ लो और करके लाया करो क्वेश्चन, ठीक है। आयशा तेरे को तो मैं सच्ची बता रहा हूँ,
रील्स बनवाऊंगा तेरे से मैं इंस्टा पे ना, मैचेस की, मेसी के सारे मैचेस की रील्स बना के भेजेगी तू कतर से मुझे, देख लियो फिर। उसमें ज्यादा खर्चा हो जाएगा, पढ़ने में तो कम ही होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं यार आज हम? जीपी, यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये नया है, लास्ट ईयर आप ऑलरेडी एपी पढ़ चुके थे। अभी हम जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हमेशा कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करेगा, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है पैटर्न से। लोग देखते होंगे बेशक इस तरीके से कि हाँ सीक्वेंस का मतलब पैटर्न है, पर सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है पैटर्न से, राइट? सो हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच में फर्क समझ चुके हैं। नाउ we have already studied one type of progression as well, which is arithmetic progression. Now the second type of progression, which is geometric progression. This is the last progression in our syllabus. वैसे तो 4 तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं, मैंने आपको, अच्छा नहीं, हाँ होते तो बहुत सारे तरीके के हैं। होते तो बहुत सारे तरीके के हैं, बट 4 तो होते ही हैं 11th में जो हम पढ़ाते हैं, बट वो सब ऊपर की बातें हैं सिलेबस। अगर हम सिर्फ स्ट्रिक्टली सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करते हैं तो 2 तरीके के प्रोग्रेशन है हमारे पास, एपी एंड जीपी, राइट? तो सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हिच इज कॉल्ड जीपी। मैंने आपको इसके बारे में आइडिया दिया था उस दिन भी कि जब जैसे हम एपी में हर बार एक सेम नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना रहे होते हैं, सिमिलरली जीपी में हम फर्स्ट टर्म कुछ होती है हमारी और हर नेक्स्ट टर्म एक सेम नंबर मल्टीप्लाई करके मिलती है। लेट्स से दैट नंबर इज आर। सो फर्स्ट टर्म इज ए, नेक्स्ट टर्म मिलेगी ए में आर मल्टीप्लाई करके, यानी कि ए आर बन जाएगी नेक्स्ट टर्म। फिर एक बार और आर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू आर मीन्स ए इंटू आर स्क्वायर। फिर एक बार और आर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू आर क्यूब, एंड सिमिलरली इट गोज ऑन, है ना? तो what is the basic phenomena, what is the basic concept of GP? That if you take the ratio of any two consecutive terms, the ratio will be same, the ratio will be constant. So if you divide any term with its preceding term, the ratio will be r, right? And that will be r for any two consecutive terms. So if you take ar by a, it will be r. If you take ar square upon ar, it will be r. ar cube upon ar square, तो भी r। तो आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लो, उसका So, for geometric progression, this is how the terms are going to be, like a, yes, comma. yes, this is the common GP. I mean general GP. Just like the general AP, this is general GP, in which there are 2 parameters, a and r. A is called first term, और जैसे वहां पे d कॉमन डिफरेंस था, ऐसे ही यहाँ पे r क्या होना चाहिए? What is r? R is not a common difference, sir. No, common ratio. बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना जीपी का, कि रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, राइट? Okay, so A is first term, R is common ratio, right? So the basic phenomena, basic concept of GP is that ratio of any two consecutive terms. So you can write it like this: Tn plus 1 divided by Tn will always be constant, known as R common ratio. Right? So that is the basic concept of GP.
तो अभी हमारे पास जनरल जीपी है, राइट? General GP is A if we consider the first term as A and the common ratio is R. That is the number to be multiplied with each term. So A into AR, AR square, AR cube. Similarly, can you guess the nth term? We have already done this, if you remember. Can you guess the nth term? How to write the nth term? E into R raised to n minus 1. Yes, A into R raised to the power n minus 1. Correct. So to get second term, we need to multiply R once. To get third term, we need to multiply R twice. Similarly, to get fourth term, we need to multiply R thrice. That is R to the power 3. So if we want to get nth term, we will have to take the power of R as n minus 1. Right? So there are some basic concepts. First is nth term. How to find the nth term of a GP? Now, second is how to find the sum of n terms, right? So just remember these two things, that whenever you say progression, what do you mean by progression? We have already defined this. So progression is a pattern, right? And when you say pattern, what do you mean by a pattern? You mean that now you can find out any term of it. Like what does pattern mean? Pattern means simply that you can find out anything about it because it is forming a pattern. So you can find nth term. That is, you will have an explicit formula to find out nth term. And also the sum of series. Like, you know, lot of things about any pattern. That is why the patterns are formed. That is why the chapter is going on with sequence and series. अगर पैटर्न है तो इसका मतलब काफी चीजें हमारे पास उससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम पैटर्न को फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं. तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. Whenever you use the word progression, we will try to find out these two things, that what's the nth term, that if I want to find out any term, how will I find this, how will I find that out, and the another thing is the sum of the series, that how to find out sum of all these terms. So the second important thing in GP is to find Sn, that is sum of n terms. Now we'll first prove this formula, okay? Like how to find, what is the formula, I'll tell you, then I'll tell you how to get it. और इस फॉर्मूले का प्रूफ आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है. मैं प्रूफ कोई पूछेगा नहीं आपसे. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. Okay, so this is A into R to the power n minus 1 divided by R minus 1. You can simply remember this as, if you want to find out sum of n terms, that is Sn. This is A into R to the power total number of terms. This n is total number of terms. Right? And obviously this R should not be equal to 1. What happens when R is 1? Can someone tell me what happens if R is 1? Denominator becomes 0. Oh, The only denominator will be 0 and undefined. Moreover, if it's in the numerator, it's going to be no. Yeah. Just think about it. Not only the denominator is 0, but the numerator the is also numerator will be negative. no. Numerator will also be 0. 1 to the power n is 1. 1 minus 1 is 0. Oh yeah, sorry, 0. Yeah, so it is 0 by 0. Have you heard about 0 by 0? What is 0 by 0? Like, have you solved any question where you got 0 by 0?
Sorry, sir. Can you just repeat what you said? I'm asking that have you solved any question where you got 0 by 0 form? No, sir. And moreover, if let's say we have 0 by 0, what should be the answer? Just think about it. Think about all the rules you have been taught. Okay, so the rule number 1 is if 0 is in the denominator, if 0 is in the denominator, the answer would be undefined, right? Yes, sir. And rule number 2 is if 0 is in numerator, the answer would be 0. Yeah. तो अभी क्या होना चाहिए आंसर? That's the question. Sir, as far as I remember, whenever I got this answer, like very years before, I put it out. You put it out 0. Don't know, that's correct. I put it as 0. I don't know, sir. Maybe when I was in 5th or 6th grade. No. Okay. No, but that's a very interesting question, right? If you got 0 by 0, what should be the answer? Because there are 2 rules. और हमने बचपन से पढ़े हैं दोनों रूल्स. मतलब चलो दूसरे वाला थोड़ा लेट पढ़ा, but first rule तो was like we have been taught in 1st, 2nd, 3rd grade. Yeah. Yeah, just a minute. But sir, in this case, won't it be not defined? Why? Because now, previously, whatever the first rule where anything in the denominator with 0, it's undefined. Matters. Acha. So why are you giving preference to first rule? I mean, why this is not the first rule that if 0 is in the numerator, then the answer should be 0. If 0 is in the numerator, then answer is 0. Why you are not preferring this rule? Why you are preferring this rule that if 0 is in the denominator, the answer should be undefined? Sir, the reason is very random. But we learn domain in that we Yes. first check whether Ah. this denominator. Okay. Like I Okay. don't know, sir. I would choose it at अच्छा चल अभी तो एक बात समझ सकते undefined now if I would अच्छा look at. I don't. ठीक है I get it right it should be undefined this should be the first preference right अगर हम purely mathematical terms I'm talking about purely mathematical terms so the first rule is to avoid 0 in denominator whether 0 is in the numerator or not that is the second concern but the first rule is to avoid 0 in the denominator so right I get it that the answer should be undefined. बट अभी प्योरली मैथमेटिकल टर्म्स अब दूसरे मैथ्स की तरफ से भी सोचते हैं मैथ्स क्या करता है अभी मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले अभी बताया भी था देखो कि मैथ्स तुम्हारे लॉजिक्स पे बहुत काम करता है राइट मैथ्स इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट if you want to if someone asks me के what's the first thing that maths teaches you तो I would say logics मतलब लॉजिकल रीजंस राइट ये लॉजिक्स पे बहुत चलता है लॉजिकली है ये पूरा सब्जेक्ट इसीलिए हमने 0 से बचने की कोशिश की थी पता है डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास उसका कोई लॉजिक नहीं था कि अगर 0 डिनोमिनेटर में तो आंसर क्या होगा इसीलिए हम उससे बचना चाहते हैं बट अभी यहाँ पे भी लॉजिक अप्लाई करते हैं ना दोनों चीजों पे करते हैं कि अभी 2 रूल्स आपस में भिड़ गए ना अभी हमारे ऐसा नहीं होना चाहिए था यार फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन इज अवॉइडेबल I mean, this situation is, we don't want this situation to happen, right? But अगर ऐसा हो रहा है, तो भाई कोई आंसर नहीं होगा इसका. ना मैं 0 लूंगा, ना मैं undefined लूंगा. तो ऐसी चीजों को, इसको हम बोलते हैं indeterminate form. Now, indeterminate form, there is a chapter called limits in your syllabus. You will read more about these things in that chapter. You learn how to solve 0 by 0 in limits. How can you avoid these situations, right?
इसके बारे में तो अभी हम बात करते हैं, बट इफ r इज 1, लेट्स से, तो आंसर क्या दें अभी तो हमें पता नहीं। बट अगर r 1 होता है तो एक बार इसको तो देखो जरा, ये क्या बन रहा है। अभी जरा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं सिचुएशन पे। मैथमेटिकली हमने फॉर्मूले के हिसाब से जितना सोचा उससे तो हमें ये समझ आया कि ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अभी तो हम इसके बारे में नहीं जानते इसको कैसे सॉल्व करना है। शायद हम तब जानते होंगे जब हम लिमिट्स पढ़ चुके होंगे, तब भी हम इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, रिमेंबर दिस। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे और देखना अभी आंसर वही आएगा जो प्रैक्टिकली आ रहा है। यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व 0 by 0 राइट नाउ, बट लेट्स से अभी थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं सिचुएशन को। r को 1 रख देते हैं। अगर r 1 होगा तो फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज आल्सो a, थर्ड टर्म इज आल्सो a, ऑल द टर्म्स आर a, राइट। तो अब ये AP भी है और ये GP भी है, जैसे कि 2 2 2 2 2 2 AP है D0 के साथ। अगर D0 कर देते हैं तो यही एक AP बोला जाएगा, और यही चीज एक GP भी है अगर D1 R1 कर देते। डिड यू गेट इट? समझ आई भाई ये Yes, बात sir. आप लोगों को? आयशा, इरम, फहद, हरीफ, अब्दुल्ला, माज। Yes. Yes. Okay. Now practically, if I find out this sum, कहीं कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट रेज योर हैंड, राइट, एंड आस्क मी। मैं बोल दूंगा, जब मैं बोलूंगा रेज योर हैंड एंड आई विल कॉल यू आउट, तो आप मुझसे पूछ सकते हो प्रॉब्लम जहाँ पे भी है। माज स्पेसिफिकली तेरे लिए, क्योंकि तेरे को पता नहीं है अभी हाउ द क्लास इज गोइंग ऑन, सो व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी। ठीक है? Yes, sir. ओके, तो लेट्स से इफ r इज 1, तो r इज 1, तो यही चीज सेम टर्म्स आ रही होंगी हर एक में, इस पूरे सीक्वेंस में। भाई जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, अभी r को 1 रख दिया तो एवरी टर्म इज a। नाउ व्हाट शुड बी द सम ऑफ n टर्म्स Sn? What are you doing if you want to find out Sn? What are you doing? A plus A The plus, first term plus final term. Like n/2 into a plus हाँ, correct. What should be the answer? 2n. 2n और na? No, na. I mean, I was getting to. अच्छा चल, इसको ऐसे सोच, तू अभी बहुत ही मैथमेटिकल टर्म्स में सोच रही है इस पूरे पूरे प्रोसेस को ना। इसको ऐसे सोचना कि क्या कर रही है ए अप टू n टाइम्स। अच्छा, दो को एक बार ये देख, 2 आई हैव रिटन 2 6 टाइम्स, राइट? व्हाट्स द सम? 12, right? And how did we get 12? 2 into 2 6. into 6. Yeah. So we're just basically adding 2 6 times. So we can write that as 2 plus 2 plus 2 6 times अगर हम करते हैं तो we can write that 2 into 6. Multiplication और addition का concept ही है। If you are adding the same term n number of times, you can basically find that out by multiplying that term with n. So if you are adding a n times, you can directly multiply a by n. अगर 2 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो 2 into 4 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, राइट? क्योंकि वही आंसर आने वाला है। तो ऐसे a को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो n ने। हाँ, बिल्कुल सही बात है, एपी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक एपी भी है, तो इन दैट वे तो आप आंसर इसका निकाल ही सकते हो। बट अगर आप देखते ही हो बस इस सीरीज को एक बार, जस्ट रियलाइज व्हाट द सीरीज इज, तो आप देखते हो कि a is the term which we are adding n times, so the sum is n.
These are two important things. First is nth term, ये आपको पता होना चाहिए, एंड सेकंड इज Sn. आप चाहो तो इस Sn को L की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लास्ट टर्म की फॉर्म में. कैसे? देखो लास्ट टर्म यही तो होगी भाई. लास्ट टर्म क्या? nth टर्म. अगर आपको एक जीपी दिया हुआ है तो जीपी की जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म ही बोली जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने के लिए. तो an बोल दो, l बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप उस लास्ट टर्म को, एंड दैट l इज a into r to the power n minus 1. ऐसे निकलेगा वो, राइट? बिकॉज दिस इज द लास्ट टर्म, nth टर्म. सो इन दैट केस अगर आप इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहो, देखो आप ऐसे कर सकते हो. अभी पहले इसे लिख लो, चलो फटाफट. किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल रिमूव दिस. So whenever the value of r is 1, we will always, and we have to find the sum of n terms, we will use the formula Sn is equal to n into a Yes, all the time. whether it's AP or GP. Yeah. Okay. But suppose you won't be given this question. This is just a general knowledge question. I mean, this is just a question for me. I mean, so I'll design this question for you, but you will not be asked the question. That will be a very simple question if we are asking you that add 5, 10 times. That you have already done in 5th grade. अच्छा, सभी ने लिख लिया? चलो, तो मैं Sn को ऐसी L की फॉर्म में भी लिख सकता हूं. See how Sn is this. अच्छा, बाय द वे बुक्स में ना आपको ये ऐसे भी दिया हो सकता है. देखो कुछ बुक्स में ऐसे दिया होगा. हाँ, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख लेते हैं जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हम इस फॉर्मूले को कभी ऐसे भी लिख सकते हैं. बट आपको एक ही फॉर्मूला रखने की याद जरूरत है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही है. आपने ऊपर से एक नेगेटिव कॉमन लिया, नीचे से भी एक नेगेटिव कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा और दोनों नेगेटिव कैंसिल आउट होते हैं. नथिंग. तो ऐसे मत सोचना कि ये और ये फॉर्मूला अलग अलग है. चलो, बट अभी इसको लास्ट टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो मैंने क्या किया, ए को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया. जब ए को जाके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये है a इंटू आर टू द पावर n. नाउ r टू द पावर n कैन बी रिटन एज r into r की पावर n minus 1. See, I have to express this n into the form of sum of two numbers. भाई r की अलग अलग पावर्स, अगर r की पावर 10 है तो r की पावर 10 को मैं r क्यूब इंटू r7 लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर्स तो ऐड हो जाती हैं. तो अगर मैं 1 और n minus 1 को ऐड करता हूँ तो दैट विल बी n. So I can simply write r to the power n as breaking the powers into the form of sum, r to the power 1 into r to the power n minus 1. So this, you can take one r outside and a into r to the power n minus 1. Okay, let me write it. You can write it like this, and then a into r to the power n minus 1 becomes l minus a divided by r minus 1. तो आप लास्ट टर्म की फॉर्म में भी Sn को ऐसे लिख सकते हो. क्या फायदा है? फायदा ये है कि भाई आपको एक पावर नहीं निकालनी पड़ेगी, बस r टू द पावर n, और कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं. बहुत बार लास्ट टर्म ही दी होती है तो यही लगाना पड़ता है, तो वो सब हो सकता है बस. इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है. हाँ जी, अभी आप इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. सर यस. सर ये थर्ड वाला पार्ट आपने किया था ना? हाँ. वो मुझे समझा नहीं. कौन से वाला? ए डॉट आर. अच्छा अच्छा, एक सेकंड.
दिख नहीं रहा। एक सेकंड, ये वाला नहीं सर, उसके बाद वाला आर डॉट आर इंटू एल। ठीक है, तो ये a और r टू द पावर n माइनस वन। तो तेरे पास AP जो है, जनरल AP अभी हमने माना, वो सॉरी जो जनरल GP था उसको हमने ऐसे ले लिया था क्योंकि GP इस तरीके से बनता है, हमने मान लिया इस GP के पास n टर्म्स है, तो nth टर्म ये होगी, है ना? और ये देख कि जो भी nth टर्म होती है उसी को लास्ट टर्म बोला जाता है, मतलब लास्ट टर्म इज द nth टर्म या nth टर्म इज द लास्ट टर्म, कैसे भी देख रहे इस चीज को। लेट्स से तू इस GP को देख, 2 4 6 सॉरी 2 4 6 तो GP है ही नहीं, 2 4 6 तो AP है, 2 4 8 16, और लेट्स से मैंने इसको 1024 लिख दिया और मैं इसमें तुझसे SN की बात करता हूं, तो n जैसी मैंने यूज करा तो n यहाँ पे खुद ही ये स्पेसिफाई कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस GP, किसी भी GP या किसी भी AP किसी भी सीक्वेंस के लिए ऐसे हम n की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो जितनी भी उस सीक्वेंस के अंदर टर्म्स है वो सारी n की वैल्यू वो है, एंड इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस। तो n जैसे तूने बोला तो टोटल टर्म्स आ गई। अब an जो होगा वो होगी nth टर्म, SN माने तो सम ऑफ n टर्म्स, an बोले तो nth टर्म, और an nth टर्म यानी कि जो भी है लास्ट टर्म वही तो nth टर्म है। तो an और l दोनों बराबर है, यानी कि जो लास्ट टर्म थी इसकी वही इसकी nth टर्म थी, वो a इंटू आर की पावर n माइनस वन थी। तो मैंने यहां से एक r को तो अलग निकाल दिया और a और r की पावर n माइनस वन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये वैल्यू एक्चुअली l बन गई या an बन गई, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। तो r इंटू दिस लास्ट टर्म माइनस a अपॉन r माइनस वन। समझ आई तेरे कोई बात? हाँ सर, समझा। सर हाँ हाँ ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, a इंटू आर एस टू एन माइनस वन बाय आर Yes. माइनस वन इज इक्वल टू, ये इक्वल कैसे होगा? ये हाँ, नहीं ऊपर a इंटू आर एस टू एन माइनस वन बाय आर अच्छा माइनस वन इज इक्वल टू। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये समझ, मान ले तूने 7 माइनस 3 लिखा, तो यहां से नेगेटिव कॉमन ले, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 7, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया, जब मैं ऊपर से एक नेगेटिव कॉमन लूंगा तो 1 बन जाएगा पॉजिटिव, माइनस 1 था तो प्लस 1, और r की पावर n था पॉजिटिव तो ये बन जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली मैंने नीचे से भी एक नेगेटिव कॉमन लिया, तो देख फिर से 1 बन जाएगा पॉजिटिव, r बन जाएगा नेगेटिव, और ये दोनों बाहर नेगेटिव लग जाएंगे, ऊपर भी एक नेगेटिव कॉमन लिया होगा नीचे भी, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं ठीक है, नोट करो एक मिनट, तो मेरे को शायद इसको नोट से लिखेंगे। अच्छा चलिए एक मिनट। हाँ जी, सभी लोगों ने नोट कर लिया? हाँ जी, यहाँ पे यही बताया जा रहा है, एक दो बातें और ध्यान में रखो, इसमें आपको ज्यादा तो कुछ नहीं लिखना है, कि सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, राइट, मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा कोई भी नंबर जीपी का, क्योंकि जैसे ही कोई भी नंबर जीरो हुआ तो अब आप उसको रेशियो के साथ कैसे लिखोगे यार। लेट्स से, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देकर दिखाता हूँ यहीं पे। मान लो एक ऐसे जीपी
मान लो आप बोल रहे हो जी ये एक जीपी है, कुछ भी चलो मुझे नंबर दो, बस 0 हमें उसके साथ रखना, जो आपका मन करे, 1 7 100 वॉट एवर यार, चलो कोई जीपी उठा लेता हूँ, 1 2 4 उठा लेता हूँ, और आप कह रहे हो कि ये एक जीपी है, तो 4/2 2, कॉमन रेशियो 2 होना चाहिए, 2/1 भी 2, ठीक है, बट 1/0 इंफिनिटी। और जब इससे पिछले वाली टर्म देखोगे, लेट्स से अगर इसके पीछे भी होती कोई, ये लास्ट टर्म होती या ये बीच में होती कहीं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई टर्म होती, उसके साथ इसका रेशियो होता 0। तो 0 कभी भी 0 नहीं हो सकता जीपी के अंदर, कोई भी टर्म के अंदर अगर कोई, मतलब अगर कोई बोल देना आपसे कि ये प्रोग्रेशन के अंदर एक टर्म 0 है, व्हाट इज द कंक्लूजन, आप बोल सकते हो कि ये सीक्वेंस कभी भी जीपी नहीं होगा, ये हमारे पास कंक्लूजन है। क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं मतलब क्या होगा ये हमें नहीं पता है, बट वन थिंग इज श्योर कि अगर इसके अंदर एक भी टर्म 0 है तो ये जीपी नहीं बन सकता कभी भी, right? So a sequence of non-zero numbers is called a GP if the ratio of a term and the term preceding to it is always a constant quantity. Right? This constant quantity is known as R, common ratio. अभी जनरल जीपी आपको दिखाया गया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो इससे आप ये बना सकते हो, और लास्ट टर्म हमारा nth टर्म हो जाएगी हमारे पास a into r to the power n minus 1 a फर्स्ट टर्म। अभी ये लास्ट जो पॉइंट है इस पर आते हैं जरा, सिलेक्शन ऑफ टाइम्स। तो इससे पहले एक क्वेश्चन भी कि एपी में हमें बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, जरा 9.2 एक्सरसाइज पे आओ यार तुम सब लोग, क्वेश्चन वैसा खराब ही देता हूँ, हमने करा नहीं है, इसमें दिया है कि नहीं नहीं जा रहा है तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, बट चलो मैं करा देता हूँ। तो लिखो एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो फटाफट। सम ऑफ 3 terms of an AP, sum of 3 terms of an AP is given 24. Sum of 3 terms of an AP. AP. Yes. Sum of 3 terms of an AP is given 24. Not 24, guys. Let's just increase the value. Take any value. What do you want to take? Come on, anyone? Well, let's take 54. Sir, what did you say, sir? What? Isn't Sir, he good? why I can't hear you properly. Acha, I was asking you to guess a number. Take the number of your choice, but let me give you the number now. 54. The sum of 3 numbers of an AP is 54. The product of first and third number, the product of first and third number is tough one, right? ठीक है. The product of first and third number is 275. The product of first and third number is 275. Find the AP. Find the AP. Basically, you have to find all the terms of this AP. Can you do it? Yes. No. Solve it. And tell me the answer.
अरे कर कैसे रहे हो भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। सफा, हाउ आर यू डूइंग इट? टेल मी। So, sir, since the sum of three terms of an AP is 54, I Hmm. found that A plus D is equal to 18. Like after substituting in the formula, Sn is equal to Yeah. n by 2. Yeah, I get it. Then Yeah, then product of first and third term like A square. plus 2AD is equals to 275, right? Yeah. So Safa, it could have been way easier. Thank you for helping me out. Right? That is what we don't need to do exactly. वो मैं भूल गया, but that's my mistake because I haven't taught you this while studying AP. So this is exactly that selection of terms. Selection of terms. What it does is, if you're given some of the numbers, right? And I mean, sum is SOME sum. So if you're given some numbers, right? And if you're given some terms of an AP or GP, and you have been given some information about these terms, it can be sum of terms, it can be product of terms, right? These type of information is available to you, right? So now what you have to do is, you don't assume these terms as A plus D, and A plus 2B. Don't directly assume that A is the first term always. I get it कि ये हमारे पास जनरल एपी होता है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है. आप कर सकते हो इससे, हम ये नहीं कह रहे, but it will be time consuming. It will be much time consuming as compared to if you do this with assuming the terms like this. Now see, ये भी तो एक एपी है. इस एपी का फर्स्ट टर्म है a minus d and common difference है d. The only thing is this AP starts from A minus D. This is also an AP, right? The common difference is D. In every case, the common difference is D. If you subtract these two, you will get D. If you subtract these two, you will get D. This is an AP. And if you add them, you will get 3A. What is 3A? 54. Now A is what? 18. So Safa, you got A plus D as 18, right? What was that? Second term. Second term of AP. We also got second term of the AP as 18. Right? Don't be confused that this is the first term. No, this is the second term. This is our second term. A is equals to 18. Now we have to find D. If I find out A and D, I still can find out the whole AP. But doing the question this way reduces one of the variable. जब आप A plus D, A plus 2D लेके ये question करोगे, you will not be able to reduce the variable. आपको second equation में भी A और D दोनों के साथ जाना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे क्या करते? आप सम निकालते, तो वहां से आपको A plus D की वैल्यू मिलती 18, ना कि सिर्फ A या सिर्फ D की. आपको पूरी वैल्यू मिली, आपका वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ. यहाँ पे A 18 आ गया. अभी देखो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आएगा और वैल्यू बनेगी 275. A आपके पास ऑलरेडी है, आप D निकाल सकते हो. D आएगा प्लस माइनस 7 सॉल्व करने पे. D स्क्वायर आएगा 49, D बनेगा प्लस माइनस 7 बिकॉज D स्क्वायर इज 49. तो D इज प्लस माइनस 7. अब आप D को एक बार 7 लो. अगर D को आपने 7 रखा तो ये बन जाएगा, देखो 11. When D is 7, the AP is 11, 18, 25. When D is minus 7, the AP is 25, 18, 11. सेम है, टर्म्स सेम है, बस AP इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जा रहा है. तो देखो कितना जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा.
So this is called selection of terms. How to select terms if some information is given about an AP, right? तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंटर भी लिख लो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. अच्छा, इसी में लिखते रहना. चलो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जीपी के लिए अलग और एपी के लिए अलग. यस सफा. सफा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. एक्चुअली योर वॉइस इज ब्रेकिंग. Sir, यस. you hear me? Like, Yeah. 3a equals 54. So a is 18. And how is that possible? Yeah, a is 18. No, the sum of all the numbers, no? You have been given the sum of all the numbers is 54. Yeah. So if you add a minus d, a and a plus d, d gets cancelled. 3a is equal to 54. Okay, sir. A is equals to 54. A is equals to 18. That's the best part actually. Why are we taking this? Because we have to cancel out d directly. We have been given sum of terms. So when you talk about AP, तो आपको generally sum of terms given होगा. तभी क्वेश्चन शुरू करेगा वो. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है वो सम ऑफ टर्म्स आपको देगा. और जैसे ही सम ऑफ टर्म्स दिया जाए तो टर्म्स को कुछ इस तरीके से मान लें दैट इफ यू फाइंड आउट द सम, डी गेट्स कैंसल आउट. दैट इज द बेस्ट वे टू अचीव. तो इसके लिए हमारे पास, मतलब हम इसको बताते हैं आपको स्टार्टिंग में, और इससे क्वेश्चन आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं तो इजी हो जाता है क्वेश्चन. हाँ जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? प्लीज फील फ्री टू आस्क. ठीक है, तो ए आया, डी आया, एपी भी आया. इस तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्व. नाउ द दिस यू हैव टू राइट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. हेडिंग डाल दो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. ये आगे वाला मत लिखना अभी, पहले सिर्फ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लिखो. और अभी फर्स्ट पॉइंटर बनाओ. बात कैसा चल रहा है यार? हो गई शिफ्टिंग विफ्टिंग सब सही सेटल्ड हो गया? ओके. और मैथ्स कैसा चल रहा है? उसका मुझे नहीं लगता है थोड़ा थम्स अप. थोड़ा अभी टेस्ट में पता चलेगा. टेस्ट वेस्ट लेने पड़ेंगे तो तभी पता चल पाएगा कैसे चल रहा है मैथ्स. तो ऑनलाइन टेस्ट की भी कमी क्रेडिबिलिटी है. चीटिंग तो नहीं करते तुम लोग टेस्ट में? नहीं नहीं, बता सकते हो. No, sir. नो सफा? अरे वाह. अरे अच्छा, और सब लोग करते हैं सफा और फात के अलावा? ओके. तो हाउ कैन वी स्टॉप दिस? नहीं नहीं, जस्ट द टेक आइडियाज. हाउ कैन, ऑब्वियसली वी कैन मॉनिटर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बट तुम्हारे हाथ थोड़ी मॉनिटर कर पाएंगे. वो तो गूगल पे चल ही रहेगा. क्या कर रहे? ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. अभी ए, इसके अंदर पॉइंटर नंबर ए आप ऐसे डाल सकते हैं. आई टेल यू. आपने लिख लिया ना सभी लोगों ने? कैन आई रिमूव दिस? ये सॉल्यूशन लिख लो, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख ले. अभी तक फादी क्वेश्चन सॉल्व हुआ जो लिखवाया था अभी? या अच्छा, तू था ही नहीं शायद क्लास में, लिखा ही नहीं. ठीक है, तो अभी लिखो ए, और ए में लिखो एपी. एपी और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखो इफ सम ऑफ टर्म्स इज गिवन. SUM. If SUM, if sum of terms is given. तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक एपी के अंदर सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, कुछ टर्म्स दी हुई है और उनका सम दिया हुआ है. Sir, can you just repeat? I couldn't hear you. Your voice. Yes.
this. So write the first pointer as AP when sum of terms is given. तो आपको sum of terms दिया होगा, कितनी terms का sum दिया होगा ये अब आप यहां से पहचान सकते हो। अगर आपको 3 terms का sum दिया हुआ है, आपको बोला एक AP है जिसके अंदर 3 terms है और उनका sum दिया हुआ है, तो what you can assume the terms as A minus D, A and A plus D. Right? Now if the terms are 4, तो थोड़ा सा बदल जाएगा, A minus 3D, A minus D, A plus 2D, sorry, A plus D Sir, and A plus 3D. If the terms are 4, 3 terms, so this, and 4 terms, so terms will be like this. You have to assume these terms. Can you tell me whether these terms are in AP or not? जो मैंने 4 terms में लिखा है. If they are in AP, then what's the common difference? Can you find out the common difference of these 4 terms? मतलब इस AP का. ये है भी AP में terms होंगी भी कि नहीं? पहले तो ये समझ के बताओ. और अगर होंगी तो बताओ मेरे को common difference क्या होगा इस AP का in terms of A and D. या तो A या तो D या कुछ भी. जैसे देखो ये 3 टर्म्स हैं तो AP में है ये, और क्यों बोल सकता हूं मैं, क्योंकि अगर मैं A में से A माइनस D माइनस करूंगा तो D बचेगा, और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तब भी D बचेगा, तो ये AP है जिसका कॉमन डिफरेंस D है। ऐसे ही क्या ये एक AP है? फाइंड आउट, अगर है तो कॉमन डिफरेंस क्या है? in AP minus 2D is नॉट माइनस 2D, 2D। 2D, sorry. 2D अगर is हम या करेक्ट सफा, अगर हम 2D इसमें ऐड करते हैं तो A माइनस D बनेगा, और अगर हम A माइनस D में 2D ऐड करते हैं तो A प्लस D बनेगा, और अगर हम इसमें फिर से 2D ऐड करते हैं तो A प्लस 3D बनेगा। सो दिस इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस 2D। राइट। अच्छा, अब चलो तुम लोग मेरे को ये बात समझ के बताओ, कि लेट्स से अगर मेरे को 5 टर्म्स गेस करनी होती, मतलब 5 टर्म्स का सम दिया हुआ है, मुझे 5 टर्म्स दी हुई है कि उनका सम दिया हुआ है, तो क्या होनी चाहिए थी वो टर्म्स? कैसे अज्यूम करता हूं? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन तो A और D से ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है जैसे या तो थर्ड टर्म वाले में बनाया या 4 वाले में बनाया। वैसे 3-4 से ज्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं, 5 टर्म्स कभी देके कोई नहीं पूछेगा, बट मैं पूछूं, मैं जानना चाहता हूँ आपको समझ आया, मतलब आपको कुछ समझाने के लिए। अच्छा देखो, हमारा पर्पस तो यही था ना कि अगर हम सम निकालना चाहते हैं तो D शुड गेट कैंसल आउट। इस केस में 4 टर्म्स के केस में अगर आप इसी में ही कुछ आगे पीछे बढ़ाओगे टर्म्स, लेट्स से यू टेक A plus 2D, या प्लीज Safa, you wanted to say something? so it's like maybe like A minus 2D comma A minus D, A plus D and A plus 2D. Correct, very good. But coming back to what I was saying now, देखो अगर तुम इसी में ही 4 टर्म्स तुम्हें मानने, तो you have to assume 4 terms, right? And आपने 3 टर्म्स को देख लिया कैसे assume करना था, और आप 4 टर्म्स assume करने गए तो आपने देखा कि अगर मैं इसी में ही कोई टर्म बढ़ाता हूं तो D कैंसल आउट नहीं होगा। 4 टर्म्स के लिए हमें इस तरीके से इसलिए लेना पड़ा क्योंकि D कैंसल आउट ऐसे ही होगा, बट 3 टर्म्स में आप एक A रखो, एक साइड पे D घटा दो, एक साइड पे D ऐड कर दो। ऐसी 5 के लिए भी आप A रखो बीच में, एक 2 टर्म्स इधर ले लो, D घटाते हुए,
और 2 टर्म्स इधर ले लो डी बढ़ाते हुए, राइट? इन दैट वे the terms will be AP also, the terms will be in AP also, or D will get cancelled out. Again, if you add them, तो D will get cancelled out. But that is only possible when the number of terms are odd. जब भी number of terms odd होंगे, middle term को A मानो और उसके आधा आधा दोनों तरफ बढ़ा दो. But जब भी number of terms even होंगे, तो middle terms होंगी 2, which will always be A minus D and A plus D. Now write a AP with common difference 2D on either side, जितनी भी टर्म्स चाहिए. तो लेट्स से अगर मेरे को 6 टर्म्स चाहिए होती तो मिडिल टर्म्स होती 2, A माइनस डी A प्लस डी. अब मैं 2 टर्म्स इसके इधर ले लेता, यानी कि A प्लस 3D एंड A प्लस 5D, और 2 टर्म्स इसके इधर ले लेता तो इधर भी आ जाता A माइनस 5D इफ मेरे को सम ऑफ 6 टर्म्स दिया होता, which would never be given though. ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, बट जस्ट फॉर रीजनिंग इस तरीके से हम ये कर रहे हैं. खैर हमें तो 3-4 टर्म्स का ही लिखना था, आप चाहें तो 5 का लिख सकते हैं. तो ये होगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, यानी कि यू हैव टू सेलेक्ट योर टर्म्स, यू हैव टू अज्यूम योर टर्म्स लाइक दिस. इन दैट वे यू विल बी एबल टू रीच टू योर आंसर फास्टर. अब बी पॉइंट लिखिए, जीपी. इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन, B, GP, if Sir. product of terms is given. Yes, Aisha. सर अगर हम लोग दूसरी तरह लेते हैं लाइक A, A plus 2D, A plus 3D, तो वो क्यों नहीं ले सकते हम लोग? तो वो तो होगा ही नहीं ना आयशा, AP. तो अगर मान ले तू ऐसे लेती है A plus 2D, A plus 3D, तो ये तो AP नहीं बना. यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2D है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस 2D है, यहाँ पे डिफरेंस D है. और तू ऐसे ले सकती है, जनरल लेके चल सकती है. जनरल AP तो तुझे पता ही है, A और D कॉमन डिफरेंस के साथ, A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, ये ले सकती है. बट इसके इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, बस इतना है. जैसे देखो अभी तुमने कितनी देर में क्वेश्चन हुआ ही नहीं था वो सॉल्व, क्योंकि तुम्हें पूरा सॉल्व करके आना पड़ रहा है. ठीक है वो तरीका, नो डाउट, बट कभी कभी तो फंस भी सकते हैं. देख एक तो ये भी है कि कभी कभी तो ऐसा होगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा उससे, क्योंकि वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगी. थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर हम बनाए, बट तेरे सिलेबस में ऐसा तो नहीं आएगा बहुत टफ हो जाएगा, बट तेरे सामने भी ऐसा जरूर आएगा कि जिसमें तेरे लिए वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. तो इसलिए ये वाला इस तरीके से करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, तो जल्दी पहुंच जाएंगे क्वेश्चन, मतलब आंसर तक. और जीपी में तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है फिर, क्योंकि जीपी में तो प्रोडक्ट निकलते हैं. तो एक बात समझ लो कि एपी और जीपी ना क्या डिफरेंस है इन दोनों में. एपी में जैसे सम चल रहा होता है ना, जीपी में वैसे ही प्रोडक्ट चल रहा होता है. माने कि अगर एपी में आपने फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पहुंचने के लिए सम करा था, तो जीपी में आपने फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पहुंचने में प्रोडक्ट करा है, थर्ड टर्म पहुंचने में फिर से प्रोडक्ट करा है. हर बार नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे वहां पे हर बार ऐड हो रहा था, राइट. तो जैसे एपी में आपको सम दिया गया था, सम ऑफ टर्म्स, आपको प्रोडक्ट भी दिया गया था, बट 2 नंबर्स का दिया गया था, पूरे एपी का प्रोडक्ट नहीं दिया गया था. वैसे ही जैसे वहां पे सम ऑफ टर्म्स दिया गया था, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया जाएगा. आपको कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट दे देंगे और बोलेंगे कि अब आप इस जीपी को फाइंड आउट करके बताओ, कुछ क्वेश्चन ऐसा बना देंगे, राइट. तो ये पहचान है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन व्हेन टू सेलेक्ट द टर्म्स अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूले जो हम बता रहे हैं. वैसे तो आप अपने जनरल भी लेके चल सकते हो, बट आप इनकी भी अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. फिर आपको दोनों चीजें बताऊंगी, आपको खुद पता होगा कि मेरी कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो सकती है. ठीक है, पैटर्न्स में यही करना होता है, यू हैव टू फाइंड द पैटर्न्स. तो हमने भी एक पैटर्न ढूंढ लिया इसके लिए कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व करें. तो जीपी में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन होगा जनरली. अब 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन होगा, तो हम चाहते हैं एक वेरिएबल एलिमिनेट हो. तो हम अपनी टर्म्स को कैसे मानेंगे, ए बाई आर, ए एंड ए आर, जिससे कि इनका प्रोडक्ट निकालो. देखो तो आर आर क्या गेट्स कैंसिल आउट. अगर 4 टर्म्स दिया हो तो 4 में मिडिल टर्म ए नहीं हो सकती, मिडिल टर्म ए होगी तभी आर आर कैंसिल आउट होगा. तो इसलिए 4 में 2 मिडिल टर्म होंगी,
मतलब ऑब्वियसली दो मिडिल टर्म है ही 4 में, तो a बाई आर और ए आर, फिर इधर ए आर क्यूब और इधर a अपॉन आर क्यूब, तो आर स्क्वायर, जैसे वहां पे देखो 2d था कॉमन डिफरेंस सेकंड वाले केस में 4 टर्म्स में, ऐसे यहाँ पे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया, मिडिल टर्म हो गई 2, तो जो भी वहां पे सम में है 2d माने d प्लस डी, तो यहाँ पे वहां का d प्लस डी यहाँ पे आके r इंटू आर बन गया। तो पूरा टाइम एपी और जीपी ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, जो वहां पे सम है वो यहाँ पे प्रोडक्ट है। आप इन दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हो चाहो तो काफी हद तक, राइट। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आप सबसे पहले तो कंप्लीट कर लीजिए, कर लिया ना सभी लोगों ने कंप्लीट? ओके, एक मिनट तो सबकी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। एक ये बात जरूर लिख लीजिए, पहले 2 पॉइंट्स फटाफट। फर्स्ट पॉइंट, इन अ फाइनाइट जीपी। अच्छा, अब एपी की बात करते हैं। लेट्स से ये हमारा एक एपी है, चलो मैं कोई भी एक सीक्वेंस मान ले रहा हूँ, फिर इस सीक्वेंस को थोड़ी देर के लिए एपी एज्यूम कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए जीपी एज्यूम कर लेंगे, वो तो हमारी मर्जी है। हम तो इसे जनरल ऐसे लिख रहे हैं, तो टर्म्स लिख रहे हैं बेसिकली। लेट्स से टर्म्स एपी में है, तो हमने एक बार डिस्कस करी थी, अगर एपी में टर्म्स है तो सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज सेम। यानी कि t1 प्लस tn की जो वैल्यू है वही वैल्यू t2 प्लस tn माइनस 1 की भी होगी, अगर इनको सम करोगे और इनको सम करोगे और ऐसी ऐसी इनको सम करते जाओगे, तो इधर से जो सेकंड टर्म है उधर से भी सेकंड टर्म लोगे तो सम हमेशा सेम आएगा। किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल आएगा, राइट। वैसे ही अब देखो जीपी में तो प्रोडक्ट है, तो सेम चीज जीपी में कैसे अप्लाई होगी? प्रोडक्ट की तरह फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट का भी होगा। होना भी चाहिए ना यार, इधर से आप इधर गए तो एक आर मल्टीप्लाई करके गए थे ना, तो जब उधर से इधर आ रहे हो तो 1 बाई आर कर रहे थे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी 1 ही है, right? So in a finite GP, the product of equidistant terms from the start and from the end is always same and is equal to the product of first and last term. और दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर 3 नंबर्स जीपी में है, राइट, अगर 3 नंबर्स एपी में होते एबीसी, तो ऐसी एक प्रॉपर्टी होती थी, याद है किसी को? क्या थी वो प्रॉपर्टी एबीसी के बीच में? 2b is equals to a plus c, राइट। ऐसे बोल देते थे। कैसे निकालते थे? कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ऐड करेंगे तो 2b is equals to a plus c आ जाता है। तो कभी हमें बोला 3 नंबर्स हैं और ऐसे हैं, तो हम कह देंगे एपी में है भाई तीनों नंबर्स, इतना बोल सकते हैं अपन। तो सिमिलरली अगर मेरे को बोला जाए एबीसी जीपी में, तो उनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि b by a should be equal to c by b, right? Which means that if I cross multiply, b square should be ac. ये प्रॉपर्टी। चलो अभी इस पर कल क्वेश्चन करते हैं कुछ, और कल पूरा फिनिश कर देंगे जीपी, फिर इसके बाद सीरीज वाले पार्ट पे आ जाएंगे, वो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी इसके क्वेश्चंस थोड़े थोड़े लगाना शुरू कर दो। देखो अभी तो आज टाइम भी है, 10-15 क्वेश्चन लगा के आओ, एन टर्म और एसएन वाले और एएन वाले सारे क्वेश्चंस लगा के आओ। टेल यू कितने क्वेश्चंस तुम लगा सकते हो इजीली, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है। 21 तक ट्राई करो कल, 20 तक कर लो, चलो 20 तक ट्राई करके आना कल। Question number 20, sir. क्वेश्चन नंबर 20 या पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई करके आओ। पहले 5-6 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी होंगे, यू जस्ट ट्राई देम। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि अभी मैं बताऊंगा कि नहीं,
आप बट ट्राई करके आना, थोड़ा देख के आना क्वेश्चंस को, और पहले 10-15 तो 100 कोशिश करने के हो जाने चाहिए।